السلام علیکم ناظرین، میں ہوں البینا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کریں گے جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں 11 جماعتیں تھیں اور اپوزیشن کی تمام تر 11 جماعتیں اکٹھی ہوئی تھی ون پلیٹ فارم پہ، وہ اب کلیئرلی اس کے حوالے سے اگر کہا جائے کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، بلکہ آفیشلی ٹوٹ چکی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہی ایک دوسرے کی اپوزیشن بن کر کھڑی ہو گئی ہیں رادر دین کہ وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہی ہیں۔ جب دیکھا جائے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تو وہ پی ایم ایل این کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ضمانت پر باہر آ چکے ہیں اور کوئی ڈیل ہو چکی ہے۔ دوسری جانب یہی بات جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کر رہی ہے کہ کوئی ڈیل جو ہے ہو چکی ہے اور ڈیل دی جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت کی طرف سے۔ دونوں کے سملر الزامات ایک دوسرے کے اوپر، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے شرمیلہ فاروقی صاحبہ کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے کوئی ڈیل کیا یا ہمیں ڈیل دی گئی ہے تو پھر ہمارا سٹانس کچھ اور کیوں، اور پھر شہباز شریف صاحب وہ کیوں ضمانت پر باہر آئے؟ یہ سوال جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اب بھی کر رہی ہے کہ ضمانت پر کون آیا ہے اور کس کو ڈیل یا ڈیل مل رہی ہے، یہ واضح ہے۔ ان تمام سچویشن کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے اب سے نہیں بلکہ کافی عرصے سے، بلکہ کئی سالوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ دھڑے بندی جو ہے وہاں پر موجود ہے، 2 دھڑوں میں جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون تقسیم ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ اندر جائیں گی اور جس طریقے سے باہر شہباز شریف صاحب آ چکے ہیں وہ باہر ہوں گے، وہی سیاست کریں گے، تمام تر جو زور ہے اور جو کنٹرول ہوگا پی ایم ایل این کا وہ ان کے ہاتھوں میں ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں کالعدم جماعت ٹی ایل پی کے حوالے سے، ان کو جو ہے کمپلیٹلی جو ہے کالعدم قرار دینے کے لیے جو ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ جو وزارت داخلہ ہے انہوں نے جو ہے کہا ہے کہ وہ سمری جو ہے اس کی فارورڈ کر دیں گے۔ بہت سارے لوگ جو ہے 2 مختلف ایشوز کو اس وقت مکس اپ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اس بات پہ کہ خان صاحب کہتے تھے کہ طالبان کے ساتھ ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے اس وقت کہ طالبان کا ڈائیلاگ جو کہ افغانستان کے ساتھ انٹر کنیکٹ کرتا ہے اور انٹرنیشنل ایشو ہے وہ مختلف معاملہ ہے۔ دوسری جانب ٹی ایل پی جو کہ پاکستان کی جماعت ہے، جو کہ تحریک لبیک پاکستان کے نام سے ہے، انہوں نے الیکشنز میں بھی بار بار کنٹیسٹ کیا ہے اور وہ ایک ریلیجس سلوگن کے ساتھ تو سامنے ہے لیکن وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے۔ یہ بات سامنے ہمیں ایک واضح ہونی چاہیے۔ دوسری جانب جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بار بار ڈائیلاگ کی بات کی طالبان کے ساتھ، وہ ایک بالکل ہی اس سے کانٹری جو ہے معاملہ ہے اور وہ ایک انٹرنیشنل ڈائیلاگ کی بات ہے، تو یہ 2 معاملات کو کسی بھی طریقے سے ملانا بالکل درست نہ ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں فرانس کے ایمبیسڈر کو بھیجنے کی جو ٹی ایل پی کی طرف سے بات ہوئی اور بالکل انہوں نے صحیح جو ہے مطالبہ کیا تھا، لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی غلطی کیا تھی کہ وہ پہلے سے ان کو جو ہے اعتماد میں لیتے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے کہ ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں اور ہماری کیا کیپیسٹی ہے اور فرانس کی کیا کیپیسٹی ہے۔ کوئی بھی مسلمان جس میں تھوڑا بھی ایمان ہوگا وہ کسی بھی طریقے سے اپنے مذہب کی بے حرمتی برداشت نہیں کرے گا اور نہ ہی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی سن سکتا ہے۔ تو آخر کیسے ہم مسلمان سن سکتے ہیں؟ لیکن ان کو انڈر ون روف سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جو ہے ایک غلط انہوں نے ایکشن لیا، اس کو کہہ سکتے ہیں؟ اس کے اوپر ذرا ڈیبیٹ کریں گے، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے جو یہ حکومت کی طرف سے سٹانس آ رہا ہے کہ ٹی ایل پی کو پچھلے 1 سال سے سمجھانے کی کوشش ہو رہی تھی، ان کو سسٹم میں لانے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن وہ نہیں سمجھ رہے، اور جو ٹی ایل پی کے لوگوں نے کیا وہ اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو شہید کرو، اپنے ہی لوگوں کا نقصان کرو، ایمبولینسز جلاؤ، روڈز پہ پتھراؤ کرو؟ کیا یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے مسرت نیازی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے راؤ عمران صاحب، جرنلسٹ ہیں، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسرت، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے جو پی ڈی ایم ہے اس کے حوالے سے آفیشلی بالکل ختم دکھائی دے رہی ہے، کیا دوبارہ سے چانسز ہو سکتے ہیں کیونکہ بلاول صاحب تو غصے میں ہیں، کیا دوبارہ سے پی ڈی ایم بحال ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البینا دیکھیں، میں ایک بات تو آپ کو پہلے یہ کلیئر کر دوں کہ بلاول صاحب تو کبھی غصے میں دکھائی نہیں دیے، جبکہ سب سے بڑے اگر ہم سمجھ لیں کہ حریف ہیں، حریف اس لیے کہ اپوزیشن میں ہمیں اور گورنمنٹ میں خان صاحب ہیں،
تو خان صاحب کے لیے بھی کبھی اس قسم کے غلط الفاظ یا غصے والے الفاظ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کبھی نہیں کہے, اور غصے میں کبھی نہیں وہ پیپر پھاڑنا اور وہ غصہ دکھانا, پریس کانفرنس میں ایگریسو جملوں کا استعمال ہونا. آپ کو اگر کوئی بھی پارٹی پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا دوسری پولیٹیکل پارٹی کو کہے گی کہ شوکاز نوٹس, تو اس میں تو غصے والی بات نہیں, اس میں تو پھاڑ کے پھینکنے والی اس لیے بات ہے کہ وہ ایک ردی کا ٹکڑا ہے. ردی کا ٹکڑا اس لیے کہ شوکاز نوٹس جو ہے نا دیے جاتے ہیں اپنی پولیٹیکل پارٹی کے کسی برکر کو دیا جا رہا ہے, یا جو اپنی پولیٹیکل پارٹی سے ہٹ کر کوئی کام کر رہا ہے تو اسے دیا جاتا ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو کسی بھی صورت میں الوینا شوکاز نوٹس نہیں دے سکتی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے دیا کیونکہ پی ڈی ایم میں تمام تر جماعتیں جو اکٹھی تھیں, اور یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے سوال کیا گیا ہے صرف دیکھیں پیپلز پارٹی سے اور اے این پی سے. الوینا پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی اگر بات کیا جاتا ہے تو اس پہ ٹیبل ٹاک ہوتی ہے, بلوا کے بات کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ شوکاز نوٹس دیا جائے, اور اس کو تو کسی صورت میں ہمارے چیئرمین صاحب تو پھر بھی اگر ہم لوگ اگر غصے میں ہو یا کچھ بھی ہو تو اس میں کول ڈاؤن رہنے کے لیے کرتے ہیں ہمیں تلقین. اس میں تو غصہ آنے یا نہ آنے والی بات نہیں ہے, اس میں تو بالکل ہم کہتے ہیں کہ جو غلط کیا انہوں نے, جو اسٹیپ اٹھایا غلط اٹھایا, کیونکہ پی ڈی ایم بنانے والے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں جو ایک جو ہے نا لیڈر کے پاس گئے اور انہیں اس چیز پہ قائل کیا کہ اس نااہل گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے نا کچھ ایسا برتاؤ کیا جائے تاکہ عوام کی ان سے جان چھوٹ سکے. ٹھیک ہے, اس ٹانس میں جہاں پہ اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے کی اپوزیشن کر رہی ہیں, اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, جہاں تک میں اپنی پارٹی کی بات کروں گی الوینا, تو ہماری پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کے انداز سے لے کر چلنے کی کوشش کی ہے. کبھی بھی دیکھ لیں کہ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی تب بھی نواز شریف صاحب نے بائیکاٹ کرنے کے ارادے کیے, تو انہوں نے جمہوری انداز سے انہیں سمجھایا کہ بائیکاٹ نہ کیا جائے. اور جب بی بی صاحبہ شہید ہوتی ہیں تو بلاول بھٹو زرداری آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے نا نواز شریف صاحب سے کہا کہ آپ بائیکاٹ نہ کریں بلکہ الیکشن کانٹیسٹ کریں. تو ہم نے تو کبھی انہیں پس پردہ نہیں ڈالا, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری انداز سے بڑی جماعت ہے بالکل ساتھ چلے اور اپنا کام کرتی رہے. ٹھیک ہے, ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے اسامہ رضی صاحب نے, جماعت اسلامی سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, سینئر پولیٹیشین ہے. میں آپ کی جانب آؤں گی. راؤ عمران صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن جماعتیں جو کہ کہہ رہی تھیں اپیرنٹلی ہم ٹف ٹائم دیں گے حکومت کو, اب ایک دوسرے کی اپوزیشن بن کر رہ گئی ہے, کیا یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ دونوں اپنے پرسنل گینز کے لیے صرف اور صرف ایک پی ڈی ایم انہوں نے ایک ایلائی فارم کر لیا تھا؟ ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جب بھی کوئی جماعت یا تنظیمیں بنتی ہیں, اتحاد بنتا ہے, اگر ان میں تضاد ہو, ان کے ذہنی طور پہ تضاد ہو, تو وہ کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی. دونوں جماعتوں نے آج تک کوئی ایسا ایجنڈا بھی پیش نہیں کیا کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت کو اگر ہم گھر بھیج دیتے تو ہم عوام کو یہ چیزیں دیں گے. دونوں کی اپنی منزلیں بھی الگ الگ ہیں. اب جہاں تک انہوں نے میری بہن نے کہا شوکاز نوٹس کا, تو اگر وہ نوٹس کو پڑھ لیں تو وہ انہوں نے وضاحت طلب کی تھی, شوکاز نہیں بھیجا تھا, وہ وضاحت طلب کی تھی. لیکن شو کاز کی بھی لٹرل میننگ اگر ہم اس کو نارمل زبان میں اگر دیکھتے ہیں تو وہ وضاحت ہی ہوتا ہے. وضاحت ہوتی ہے, مگر انہوں نے یہ جس طریقے سے یہ انداز میں یہ لے رہے ہیں کہ ہمیں کرٹیسائز کیا گیا, تنقید کی گئی, تو میرا خیال ہے کہ ایسا معاملہ نہیں تھا. اور یہ معاملہ تھا مریم نواز کے انداز میں شروع ہوا, جو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جب اپوزیشن لیڈر بنے پارلیمنٹ کے, اس کے سینٹ کے, تو اس وقت مریم نواز اور ان کی جماعت یہ چاہتی تھی کہ یہ اس میں حصہ مت نہ لیں. اب صورتحال یہ تھی کہ راتوں رات جس طریقے سے ٹیلی فون کال چلی اور ان کے سینٹ کے چیئرمین سنجرانی صاحب نے بھی بڑی کوششیں کی, تو اس وقت ماحول بدل چکا تھا. لیکن یہ اپنا زرداری صاحب نے یہ معاملہ اس لیے اٹھایا کہ اس سے کچھ روز قبل شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب نے جو فیصلہ ساز لوگ ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کی تھی, جس کا نتیجہ یہ بھی نکلا ہے کہ شہباز شریف صاحب آج باہر آ چکے ہیں. اور دوسری بات یہ تھی, کیا یہ جو الزام پیپلز پارٹی لگا رہی ہے پی ایم ایل این کے اوپر کہ ڈیل ان کی ہوئی ہے کوئی, کیا یہ درست ہے حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں بالکل, حکومت کا آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب اس وقت اتنے اختیارات نہیں رکھتے کہ جو ان کے پاس ہونے چاہیے. فیصلہ ساز جو ہیں
वही बहुत से फैसले करते हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब को जरदारी साहब ने एक पैगाम भेजा था जिसकी वजाहत लेने के लिए वो अपना शहबाज शरीफ साहब के पास गए थे, लेकिन शहबाज शरीफ को अंदाजा था कि मैं हफ्ता डेढ़ के अंदर वापस आ जाऊंगा। उस वक्त उन्होंने उनको खामोश करा दिया था। अब ये मामला बाहर आ चुके हैं। अगर जरदारी साहब इनसे रब्ता करेंगे तो मेरा ख्याल है कि पीडीएम का इत्तेहाद दोबारा से बहाल हो सकता है। लेकिन मरीम नवाज का जो बयानिया है वो ये है कि वो तो अपने आप को काफी कह रही हैं, वो कह रही हैं कि ऑपोजिशन जमातों में हम काफी हैं। मेरा ख्याल है कि इनका इत्तेहाद दोबारा से शुरू हो जाएगा। अच्छा, लेकिन कैसे शुरू होगा? आप भी तो खुद अपनी गुफ्तगू में कह रहे हैं कि अगर मुख्तलिफ मंशूर है, मुख्तलिफ उनका बयानिया है और फिर दोनों पर्सनल गेन्स भी हैं दोनों के, तो फिर कैसे चलेगा? हुकूमत के अब 2 साल बाकी है। अगला साल तो वैसे ही ये सियासी शहीद बनने के चक्कर में रहेंगे और ये अपोजिशन जमातें भी नहीं चाहेगी कि ये निकले, लेकिन तीनों जमातों का यही काम है कि किसी तरीके से इमरान खान की हुकूमत को अवाम के सामने जो बुरा करके उसको पेश किया जाए, ना कि इनको सियासी शहीद बना दिया जाए। जहांगीर तरीन साहब चाहें तो आज हुकूमत को गिरा सकते हैं, लेकिन अपना इमरान खान साहब भी ये चाहते हैं कि किसी तरीके से असम्बलियां को तहलील कर दिया जाए। ये सारी सूरत उनको दोबारा से इलेक्शन में आने के लिए है। अच्छा, ठीक है। इस पे उसामा रजी साहब आप क्या कहेंगे? जब तमाम तर जमातें एक पीडीएम के प्लेटफॉर्म में इकट्ठा हुई और टफ टाइम देने के लिए हुकूमत को सामने आई और अब वही एक दूसरे की ऑपोजिशन बनकर बैठ गई हैं तमाम तो टॉक शोज पर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में एक दूसरे का रिबटल दे रही हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रही हैं और इल्जामात भी एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सिमिलर लगा रही हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन की सियासत है, ये दोनों तरफ की जो सियासत है वो प्रो स्टेटस को के साथ चलने वाली सियासत है। इमरान खान ने तब्दीली का नारा ज़रूर लगाया, लेकिन इमरान खान उस तब्दीली को ला नहीं पा रहे और तब्दीली के ना आने की जो सबसे बुनियादी वजह है वो ये है कि इमरान खान कोई भी लीडर कोई सुपरमैन नहीं होता। उसके साथ उसकी एक पार्टी चाहिए होती है, मुनज़्ज़म पार्टी की ज़रूरत होती है। तो वो तो सिर्फ एक फ़र्द है और उसके बाद एक हुजूम है। जो उनके सामने जो पार्टियां हैं वो तो इस बदतरीन जालिमाना जागीरदाराना सरमायादाराना निज़ाम की पैदावार पार्टियां हैं। ये ख़ानदानों की लिमिटेड कंपनियां हैं। ये जागीरदारों के और सरमायादारों के टोले हैं जो अवाम के ऊपर जुल्म करने वाले और जो जमहूरियत को एक नाम नहाद लिबादे के तौर पर ओढ़ते हैं, लेकिन वो खुद जमहूरी उसूलों के ऊपर अमल नहीं कर सकते, अपनी पार्टी के अंदर अमल नहीं कर सकते। इनकी पार्टी में बड़े बड़े कदावर लोग बच्चों के सामने बैठे हुए होते हैं हाथ बांधे हुए। तो ये इस तरह की जमहूरियत है ये कि जिस जमहूरियत में ताकत की और दौलत की फरावानी हो और वो रूल करे, अवाम रूल ना करें, जागीरें रूल करती हैं, ताकत रूल करती है, सरमाया रूल करता है, उन्हीं को टिकट दिए जाते हैं, करोड़ों में अरबों में टिकट दिए जाते हैं पार्टी की तरफ से। तो वो लोग करोड़ों और अरबों कमाने के लिए फिर उसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें बिकते भी हैं। अच्छा सर, तो एक और वाली सियासत हो रही है मेरे कहने का मतलब। ठीक है, एक और बात जो कि हम ऑपोजिशन के हवाले से कहें कि अगर ऑपोजिशन जमातें प्रोडक्टिव ऑपोजिशन का रोल प्ले करती हैं तो फिर तो वाकई प्रेशर क्रिएट करती हैं और हुकूमत भी कोई जो है बेहतर कारकर्दगी सामने ला सकती है। लेकिन इस ऑपोजिशन का अगर माजरत के साथ कहा जाए 11 जमातें भी इकट्ठी हो गई पीडीएम के प्लेटफॉर्म में, फिर भी कोई प्रोडक्टिव ऑपोजिशन नहीं दिखाई दी। सिर्फ एक ही बात हुई, वजीर आजम को घर जाना चाहिए, ना अहल हुकूमत है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। कहां पे अवामी मसाइल किधर एड्रेस हुए, कहां पर इनसे डेडलाइंस मांगी गई, कहां पर इनसे सवाल किया गया कि आपने इस चीज को यहां इस टाइम पीरियड पे डिलीवर करना था? कहीं पे कोई प्रोडक्टिव सवाल नहीं हमने देखे। देखिए, बिल्कुल बहुत ही सही बात आपने की। जो जमहूरी सियासत होती है वो जमहूर के इशूज पर होती है। जमहूर किन हालात से दो चार हैं और जमहूर की जरूरियात क्या हैं और जमहूरियत की जरूरियात क्या हैं। आपका हुकूमत के साथ बुनियादी फर्क क्या है जी? इनका बुनियादी फर्क ये है कि ये कहते हैं कि नहीं, आप हुकूमत में सही नहीं है, हमें हुकूमत मिल जाए फिर जो कुछ भी होता है। करेक्ट, ये इसी पॉइंट को आप कंटिन्यू कीजिएगा कि ये इस पॉइंट की तरह जब सियासत हो रही थी ऑपोजिशन की, अब इस वक्त वो ऑपोजिशन भी नहीं हो रही है जो बिल्कुल ही एक ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन हो रही थी। अब वो भी नहीं है क्योंकि वो एक दूसरे की ऑपोजिशन बन चुकी है जमातें। तो अब आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत को जरा इससे रिलीफ मिलेगा या कोई फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि पहले भी कोई प्रोडक्टिव ऑपोजिशन नहीं थी। देखिए, जो मुफादात की सियासत होती है और जो इशूज की सियासत होती है उसमें एक बुनियादी फर्क यह है कि मुफादात की सियासत
ताश के 52 पत्तों का खेल है। इसमें एक दूसरे को गिराने के लिए चालें चली जाती हैं और एक दूसरे के साथ नहीं होता वो, बल्कि साथ होता है प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए, कि इसको आप ब्लैकमेलिंग के लिए, उसको प्रेशर टैक्टिक्स के लिए आप इसको इस्तेमाल करें और अपने रास्ते स्टेटस को के अंदर और गहरे और मजबूत करते चले जाएं। जो पावर कॉरिडोर्स हैं उसके अंदर आपको और इनरोड्स मिलें। चुनाचे यहाँ पे ये जो इनका इकट्ठ है, ये इकट्ठ है मफादात के लिए। कोई सिर्फ जो है वो पैसों के ऊपर सियासत कर रहा है, बहुत मुकद्दस सियासत हो सकती होगी, लेकिन अरबों में हो रही है वो भी, जो सुनने को चीजें मिल रही हैं। वो चीजों को मैनेज कर रहे हैं, अब वो उनका काम मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट के पूरे पैसे वसूल कर रहे हैं। बकिया लोग हैं जो एक दूसरे की ताकत को दिखाकर जो इस्टेब्लिशमेंट है, जिसके हाथ में इस पूरे सिस्टम की पावर है, उसके साथ कुछ लो और कुछ दो की सियासत में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे से। अच्छा, कुछ दो और कुछ लो की सियासत में क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो पीपल्स पार्टी के इल्जामात है दुरुस्त दिखाई दे रहे हैं आपको? जब ये एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं तो बिल्कुल सच बोल रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, इसमें कभी कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जब ये एक दूसरे के बारे में कहते हैं बिल्कुल सही बात कहते हैं। हाँ, तो ये लेकिन इस वक्त जो ये कह रहे हैं, इनको ये उनके गिरेबान का हाल जानते हैं, ये उनके गिरेबान का हाल जानते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप बार्गेन कर रहे हैं हमारी ताकत को इस्तेमाल करके, वो कह रहे हैं कि आप बार्गेन कर रहे हैं हमारी ताकत को इस्तेमाल करके। तो नजर तो दोनों की तरफ आ रहा है। दोनों इस सिस्टम को, जो जुल्म का निजाम है, जो जालिमाना सिस्टम है, जो अवाम दुश्मन निजाम है, इसको कोई भी इशू नहीं बना रहा। लोग इसके अंदर और जो शहबाज शरीफ साहब की जो जमानत है, क्या वो नून लीग की सियासत में कोई तब्दीली लेकर आएगी? बिल्कुल, नून लीग से तो ज्यादा, यानी आप इस पे जितने सीनियर सियासतदान हैं जिन्होंने इनका मजा चखा है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि जिस वक्त ये IJI का इत्तेहाद बना था और प्रोफेसर गफूर उसके सेक्रेटरी जनरल थे, और ये सखर में जलसा था IJI का। सखर के जलसे में नवाज शरीफ MQM के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ सारे कैंडिडेट्स को बिठाने का तय कर चुके थे, और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को पता ही नहीं था। और सखर के जलसे में जब प्रोफेसर गफूर जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, IJI के सदर नवाज शरीफ थे, नवाज शरीफ ने वहां पर ऐलान कर दिया कि हमारे कराची में सारे कैंडिडेट बैठ गए हैं MQM के मुकाबले पे। ये सियासत करते हैं ये लोग। जिसने इनका जितना मजा चखा है वो इतना ज्यादा बेहतर जानता है कि करेला कितना कड़वा है। ठीक है सर। मुसरत, इस तमाम सिचुएशन में जब हम देख रहे हैं कि PDM कहीं पे हमें बहाल होती नहीं दिखाई दे रही, क्या आप लोग फाइनल डिसीजन इसके ऊपर लेंगे या अभी इस पर कोई डेवलपमेंट सामने नहीं है? नहीं, देखिए, सियासत में या डायलॉग्स में कोई चीज़ भी हरफ आखिर तो नहीं हुआ करती कि हम कह दें ये। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह से उसामा भाई कह रहे हैं कि जी सब अपने अपने मफाद की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन्हें अगर कोई मफाद की बात अगर की होती तो अदी फरियाल तालपुर जेल में ना होती। आप देखिए, मैं बता रही हूँ, देखिए मैं उसी की बात अभी मफाद की बात होगी ना, मफाद की बात कह रहे हैं कि अगर जरदारी साहब ना होते, मौलाना साहब बार-बार कह रहे हैं कि अपोजिशन लीडर सेनेट का उन्हीं का मुंतखब होना था, नून लीग का। लेकिन आप लोगों ने कहा सियासत में मैटर नहीं करती ये चीजें, तो फिर ठीक है, वो चेयरमैन सेनेट नहीं बने तो अपोजिशन लीडर हम बन जाते हैं, हमारी अक्सरियत है। मेरी बात फिर तो इस तरह देखा जाए तो दोनों कुछ है ना, दोनों लड़ रहे हैं एक पोजीशन के लिए। लड़ने वाली तो बात ये नहीं। देखिए, अपोजिशन का मसला तो फिर दे देते ना आप उनको PMLN को, क्योंकि बात तो पहले PMLN की हुई थी। जमहूरियत के अंदाज से अगर देखा जाए तो सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अक्सरियत है। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही का होना चाहिए। लेकिन और अगर इसी तरह नेशनल असेंबली में नून की है तो फिर उनकी होनी चाहिए, फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना। वहां पे उनका रिबटल इस पर मुख्तलिफ आता है। वो कहते हैं कि उस वक्त ना तो PDM की जो है कोई पोजीशन थी और ना ही हमारा कोई मुआहदा तय हुआ था कि ऑपोजिशन लीडर इसका होगा, पार्टी का उसका। वो तो उनकी भारी अक्सरियत थी तो उनका ऑपोजिशन लीडर बन गया एज पर दी लॉ। अब यहाँ पे मामला आ जाता है जहां पे PDM की सबकी पोजीशंस डिसाइड हुई थी कि कौन चेयरमैन सेनेट होगा, कौन डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट होगा, कौन अपोजिशन लीडर होगा। तो यहाँ पर जब सियासत चेंज हो गई, क्योंकि चेयरमैन सेनेट बने ही नहीं गिलानी साहब, फिर इसीलिए आप लोगों ने डिसीजन लिया कि आपका ऑपोजिशन लीडर होना चाहिए सेनेट में, जिस पर उनको इख्तलाफ था, और ये लड़ाई जो है बढ़ती चली गई। तो फिर इस तरह तो दोनों ही पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं ना। नहीं, देखिए, लड़ने वाली बिल्कुल कोई कतई बात नहीं है। अगर गिलानी साहब को वोट किसी ने ज्यादा दिए, जाहिर बात है सेनेटर्स ने, MNAs ने दिए, अगर वोट ज्यादा दिए तो देखें एक जीरक सियासतदान है और इस मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं। वो कह रहे हैं हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव से लिए। देखिए, अगर गवर्नमेंट के लोगों ने अगर सपोज कर लिया जाए
थोड़ी सी देर के लिए मान भी लिया जाए कि गवर्नमेंट के लोगों ने दिए, तो जहाँ आवाम जो है ना गवर्नमेंट से तंग है और अगर उनका कोई MNA भी दे देता है पसंद नापसंद होकर तो कोई कबाहत नहीं है। अगर उनकी तरफ ज्यादा चले गए, खान साहब को 2 वोट ज्यादा मिल गए जबकि लोग इतने जो बैठे हुए थे वो भी मौजूद नहीं, तो उसको तो वाह किया जाए, और अगर अपोजिशन के बंदों को मिल जाती है तो उसमें कहें कि जी ना एली हुई। तो इस तरह नहीं है, बिल्कुल हमारा राइट था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपोजिशन में आना सेनेट में, और जहां PMLN का राइट था नेशनल असेंबली में आना, उस पर और किसी को लेकिन इख्तिलाफ तो इसी से शुरू हुआ ना कि ये बात तो इस तरह सिंपल थी नहीं कि जो जिसकी अक्सरियत है वो उसका चेयरमैन ऑपोजिशन लीडर आएगा। जब बात तय हो गई थी कि ये पोजीशंस हैं इन पार्टीज के, तो उसके बाद आप लोगों ने मशावरत भी नहीं सोची कि मशावरत कर लेनी चाहिए, खुद ही डिसीजन ले लिया। अलवीना ऐसी कोई बात नहीं है कि मशावरत हुई कि आप होंगे। जहां तक था तो बिल्कुल अगर सही मानों में देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर रही है, यहीं से कनेक्ट करेंगे मुसरत। लेकिन ये बात भी कैटेगोरिकली क्लियर है और ये ऑलरेडी क्लियर थी कि चेयरमैन सेनेट के लिए कैंडिडेट PDM के गिलानी साहब थे। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए तो वो JUIF के कैंडिडेट थे, और इसके साथ साथ अपोजिशन लीडर के लिए जो कैंडिडेट मुंतखब किए गए थे वो PMLN के थे। ये बात तो कैटेगोरिकली क्लियर थी। उसके बाद फिर जब सियासत में चीजें मुख्तलिफ दिखाई दी तो PMLN का जो ऑलरेडी डिसाइडेड शख्स था उसकी बजाय पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट को अपोजिशन लीडर के लिए मुंतखब किया। मैं इसका जवाब आपसे लूंगी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल सवाल छोड़कर गई थी मैं मुसरत न्याजी साहिबा के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि वो क्या समझती हैं जब ये ऑलरेडी डिसाइडेड था कि तमाम तर ओहदे किस पॉलिटिकल पार्टी के शख्स के पास जाएंगे सेनेट इलेक्शंस के जो सेनेट इंतखाबात थे उसमें, तो फिर उसके बाद जो बयानिया चेंज हुआ पीपल्स पार्टी का क्योंकि गिलानी साहब नहीं बन सके चेयरमैन सेनेट, तो फिर उस पर जो ये लड़ाई और तल्ख कलामी शुरू हुई और PDM टूट-फूट का शिकार हुई। आखिर क्या ये मफादात की जंग नहीं है तो क्या है? जी मुसरत साहिबा। देखिए कोई मफादात की जंग नहीं है। मैं अपनी पार्टी की बात करूंगी तो कोई किसी किस्म की मफादात की जंग नहीं है। दूसरी बात आपने कहा कि देखिए जो शख्सियत ही मुतनाज़े हो, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एग्रीड ना हो, तो उसको आप अगर बिला जवाब बनाएंगे होना चाहिए था ना पहले से। देखिए वो कह रहे हैं आपने एग्री किया पर्सनालिटीज के ऊपर, बाद में ऑल ऑफ अ सडन आपका ये बिहेवियर हो गया। मुतनाज़े शख्सियत को किसी सूरत में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप लोग ये स्टैंड ले उस पहले स्टैंड ले सकते थे ना जब डिसीजन हो चुका था। हमारे पास इस किस्म का क्यों किया? कोई डिसाइड नहीं हुआ। हमने मुतनाज़े शख्सियत को किसी सूरत में एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अप्रूवल नहीं होना चाहिए था ना। अप्रूवल हुई नहीं ना, इस किस्म को तो कोई अप्रूवल ही नहीं। अगर अप्रूवल हुई होती तो हम अपना अपोजिशन लीडर क्यों लाते? ऐसी कोई बात ही नहीं थी। चेयरमैन बने ना आपके, तो आप लोगों ने सोचा कि चेयरमैन सेनेट नहीं बने। देखिए चेयरमैन सेनेट नहीं बने तो वैसे भी हमारा राइट था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है, बिल्कुल है। वो मुसरत साहिबा वो आप लोग का राइट था और कानून भी यही कहता है जिसकी भारी अक्सरियत होगी जिस भी हाउस में उसी का ऑपोजिशन लीडर होगा। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल ही सियासत की जो वो डेमोग्राफिक्स है, डायनामिक्स है, वो बिल्कुल ही चेंज है ना। अब यहाँ पे आप लोगों ने खुद इत्तेहाद बनाया, आप लोगों ने डिसीजन लिया कि ये पोजीशन इस पॉलिटिकल पार्टी की होंगी, फिर उससे मुकर गए। यू टर्न आप लोगों ने ले लिया। यू टर्न जो है ना, अल्लाह मुबारक करे PTI वालों को, यू टर्न पाकिस्तान आप लोग भी तो सभी लेते हैं ना। हर सियासी जमात यू टर्न लेती है और नाम एक पर ठप्पा लगा दिया। यू टर्न लिया ही नहीं हमने, ऐसा कोई यू टर्न नहीं था। नून लीग का अपोजिशन लीडर है तो सेनेट में एक नहीं, वो तो देखिए वो तो मैं कह चुकी हूँ, वो तो मैं कह चुकी हूँ, क्लियरली कह चुकी हूँ। बात दुरुस्त है, वो बात राइट है, यहाँ हमारा राइट है। लेकिन जब हमारा राइट है तो हमारा राइट जो है, लेकिन फिर पहले आप लोगों ने जब अग्री नहीं करना चाहिए कोई भी। देखिए हमने मुतनाज़े शख्सियत पे हम किसी सूरत में एग्री नहीं हो सकती, कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं हो सकती। अगर इस पर भी बात की जाती तो यकीनन डायलॉग्स की सूरत में की जा सकती थी। क्या उनके पास कोई और कैंडिडेट नहीं था? ठीक है राव इमरान साहब, आप इस पे क्या समझते हैं कि PDM के प्लेटफॉर्म में जब सारी जमातों का पोजीशन के साथ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया था, नाम आ रहा था टेलीविजन के ऊपर और वो बिल्कुल क्लियर था, उसके बाद बिल्कुल ठीक थे मामला, पीपल्स पार्टी ने कहीं पे कोई अपना जो है कोई ऐसा बिल्कुल ही स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे कोई प्रॉब्लम हो। पहले उनको कंटेस्ट कराया गया चेयरमैन सेनेट के लिए, उसमें वो हार गए। फिर उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन वो चेयरमैन सेनेट ऑपोजिशन के लिए उनको उसी कैंडिडेट को सामने लाया गया और ये पीपल्स पार्टी ने कहा क्योंकि हमारी भारी अक्सरियत है, हमारा शख्स जो आना जरूरी है। बिल्कुल दुरुस्त बात है उनकी, लेकिन फिर PMLN की बात भी तो दुरुस्त ही है ना कि वो कह रहे हैं कि एलाय फॉर्म हुआ, सबकी पोजीशंस उसमें हैंड ओवर की गई थी, अब पीपल्स पार्टी ने यू टर्न ले लिया है। देखिए जी, दोनों जमातों के अंदर और बाहर दोनों जमातों के अपने अपने मफादात हैं और ये किसी भी तरीके से नहीं चौकते फायदा उठाने के लिए।
माजी में भी उठाते रहे हैं और अब भी उठाया जा रहा है। इनके लीडर साहब ने वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि मेरा तो एक ही बेटा है, मैं इनसे नहीं टकरा सकता। तो इसका मतलब वाज़ेह है कि अब ये जिस तरीके से अब इनके ख्यालात है कि अगली हुकूमत हमारी आ रही है, इनसे पूछा जाए कि मौजूदा हुकूमत को अगर फैसला साज लेकर आए हैं तो क्या इनकी हुकूमत की भी वही लोग लेकर आ रहे हैं? तो अभी जो शहबाज शरीफ साहब वापस आए हैं उनकी हिकमत अमली भी यही है कि वो मरीम नवाज के जो तरीकाकार है, जो वालिद साहब की सियासत है, उससे हटकर अब वो चलेंगे। मतलब कि इदारों से टकराव की पॉलिसी उनकी नहीं जिस तरह जरदारी साहब मफाहमत की सियासत करते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी मफाहमत की सियासत हाँ, इसी वजह से मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि दोनों का जब एक ख्याल बनेगा तो शायद ये चले। मैं इस इत्तेहाद की कामयाबी का जिक्र नहीं कर रहा, मिलकर चलने की, टूट फूट का शिकार चलेगा इसके खिलाफ। इन्होंने अपनी इज्जत अवाम में भी तो रखनी है ना किसी तरीके से। मुस्लिम लीग नून इस वक्त क्या अवाम में पीडीएम की जमातें एक्सपोज हो चुकी हैं, आपको लगता है? क्या अवाम को इतनी ज्यादा मामलात की अभी तक समझ नहीं है? इनका कोई एजेंडा नहीं है। इनके आपस के झगड़ों से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मजबूती मिली है। लेकिन मजबूती क्या मिलेगी? जिस तरह मैंने जो है उसामा साहब से भी यही सवाल किया, मजबूती तो तब मिलती ना जब ये ऑपोजिशन एक भारी ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है और उनसे सवाल करती है। इमरान खान साहब ऑपोजिशन के पास तो कोई बात ही नहीं है करने को, अब वो चाहे लड़े चाहे ऑपोजिशन दे। एक नकारा और न अहल टीम के बावजूद उनको एक निकम्मी अपोजिशन मिली है। जी, ये उनकी नहीं ऑपोजिशन निकम्मी बिल्कुल है, बिल्कुल मुशर्रफ आप लोगों ने डेडलाइन बता दी, जितना टफ टाइम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया ना उससे ज्यादा किसी ने नहीं दिया। मुशर्रफ बता दीजिए कहां पे टफ टाइम था। देखिए कौन से आप लोगों ने आप मैं बताती हूँ, देखिए जरदारी साहब का बयानिया मैं बताता हूं, आप मेरी बात सुनिए जी। जरदारी साहब का बयानिया ये है कि वो एक वक्त में ललकार के कहते हैं तुम तो 3 साल रहोगे, हमने सारी उम्र रहना है। आज वो कहता है मेरा एक बेटा है। उनकी सियासत और बहादुरी जरदारी देखिए अभी भी देखिए जरदारी साहब जितनी बेहतरीन अंदाज से सियासत करते हैं, बेताज बादशाह सियासत चालाकी और होशियारी से बेहतरीन इंसान है और उनसे ज्यादा स्ट्रगल शायद ही किसी सियासतदान ने की हो। अच्छा, उसमें मानते सियासत है इसी चीज का नाम यू टर्न का, चालाकी का। उसामा साहब आप बता दीजिए कि सियासत क्या वाकई यू टर्न, चालाकी, मफाहमत यही है सियासत? ये तो गंदी सियासत है जी। ये वो सियासत है जिससे आप जो एक सियासत का बदतरीन वर्जन है। ये सियासत तो अवाम के मसाइल और दुख दर्द को बेहतर करने का नाम है। सियासत तो नज़रियात की बुनियाद पे कौमों को और मुमलिकतों को आगे बढ़ाने का नाम है और सियासी अमल के ज़रिए ही कौमें आगे बढ़ती हैं। बहैसियत मजमूई जो कौम आगे बढ़ती है वो सियासी अमल के ज़रिए बढ़ती है। लेकिन जब इस सियासी अमल पे कौम का गलीज़ तरीन तबका मुसल्लत हो जाए, कौम का बदतरीन तबका मुसल्लत हो जाए, तो वो फिर अपने तबकाती मफादात की सियासत करती है, अपने तबके को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने वसाइल को, अपनी ताकत को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपने वो गाने का एक मिसरा सुना होगा कि एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। तो यहाँ पे भी मसला वही है कि जो सबसे ऊपर है, जो तुर्क का पत्ता है, वो इस्टेब्लिशमेंट से भी डील कर रहा है, इधर भी कर रहा है और उसको हम कहते हैं कि ये बहुत भारी सियासत है। एक भारी सियासत यहाँ से हो रही है, एक भारी सियासत लंदन से हो रही है। ये जो भारी सियासतें हैं ये स्टेटस को के साथ ये सियासत है कि हमें सिलेक्ट करो, तुमने गलत आदमी सिलेक्ट कर लिया है। अगर हम यानी सिलेक्शन होना सिलेक्शन ही होता है। मसला ये है कि हमें सिलेक्ट करो, इक़्तिदार तक पहुँचाओ और हम लूट मार का बाजार अपने हिसाब से गर्म करेंगे, तुम्हें भी देंगे, खुद भी खाएंगे। सियासत का गलीज़ मसला ये है कि मेरी बात पूरी हो जाए तो मसला ये है यहाँ पे कि इस वक्त एक इमरान खान, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो उसने एक नारा लगाया, वो सामने आया, लेकिन उनको ये नहीं पता था, तजुर्बे ने ये बताया, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, 2.5 साल का तजुर्बा ये बता रहा है और वो खुद भी कह रहे हैं कि सिस्टम को बदलना मैं कुछ और समझा था। सिस्टम को बदलने के लिए अब उनको ईरान याद आता है। वो कहते हैं कि नहीं, ईरान की तरह का इनकलाब अभी मैं नहीं ला सकता। वो कहते हैं कि मैं रूस की तरह का इनकलाब नहीं ला सकता, मैं माओ की तरह का इनकलाब नहीं ला सकता। वो कहते हैं देखिए ना चेयरमैन माओ ज़ेडोंग जो जिस तरह पूरा चाइना की जो एक रेवोल्यूशन थी वो खूनी इनकलाब था। खूनी इनकलाब तो सोच भी नहीं सकते हम, तो वही बात है। हमारे यहाँ तो हमारी खुशनसीबी ये है कि हमारे मुल्क में एक पार्लिमानी जमहूरी पुरअमन सियासी अमल जारी है ना, तो इस पुरअमन सियासी तरीके से भी हालात ट्रांसलेट हो सकते हैं, एक पैराडाइम शिफ्ट आ सकता है। और इमरान खान
की पर्सनैलिटी को सामने रखकर ये काम किया जा सकता था। लेकिन अगर हर इमरान इदारे खान में खुद इंडिविजुअली लोग करप्ट हो, लोगों के मोरल भी अच्छे ना हो, एथिकल ना हो। मसला ये है कि वो अगर ग़िज़ा के मामला ठीक करना चाहते हैं तो शक्कर माफिया निकल आई, घी माफिया निकल आई, आटा माफिया निकल आई, सब उनके जेब से ही निकल आए सारे खोटे सिक्के। यही सर से यहीं से मैं आपसे यही बात करना चाहूंगी। यही सवाल मेरा पिछले प्रोग्राम्स में था ऑपोजिशन जमातों में से किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से कि शुगर माफिया के हवाले से, तो मैं पिछले 10 सालों में ही बात कर लूं, हमें तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि शुगर माफिया भी कोई चीज होती है और कंपनी सट्टेबाजी करती हैं और इसमें मिडिल मैन इन्वॉल्व होता है। ये सारे फैक्ट्स अब इस हुकूमत में क्यों आई सामने? तो उस पे भी उनका ये कहना था कि नहीं बस ये बातें कर सकते हैं। हमें तो ये मालूम, हमें तो फैक्ट्स भी नहीं मालूम थे ना। बातें भी करनी चाहिए, बातों के करने से भी ये यहाँ तक तो बात पहुंची ना कि सारे बेनकाब हो रहे हैं। तो बातों से ज्यादा हमें ये देखना चाहिए कि हर आप कोई सी भी एक देग बनाना चाहती हैं तो उसकी कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे ना। आप वो इंग्रेडिएंट्स डाले बगैर, आप समझ रहे हैं कि चाय की पत्ती के बगैर चाय बना लेंगे, आप समझ रहे हैं कि मतलब दाल और चावल इस्तेमाल किए बगैर हलीम बना लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इमरान खान अकेले इस सिस्टम को बदल देंगे ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान को खुद भी समझ में आ गई है बात और कौम को भी समझनी चाहिए। लेकिन अकेला नहीं है वो, अकेला नहीं है। कौम आज भी उनके 200 एक्सपर्ट का इंतजार करे जो कंटेनर मेरी बात सुन ले। एक आतिफ मियां चलेगा तो 199 अभी तक तलाश जारी है, 3 साल मैं ये कह रहा हूँ कि सिस्टम को बदलने के लिए लीडरशिप के साथ साथ एक मुनज़्ज़म पार्टी की जरूरत होती है। एक जो है वो कैडर चाहिए होता है, जो नजरियाती कैडर होता है। उस नजरियाती कैडर के जरिए आप सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं और बहुत पुरअमन सिस्टम की तब्दीली पाकिस्तान में हो सकती है। और इमरान खान उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि अब उनको ये तय करना पड़ेगा कि वो स्टेटस को के साथ खड़े हैं या वो फिर उससे बाहर आने का फैसला करने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान बहाना मिले कि असम्बलियां तोड़ दी जाए, ये पाकिस्तान की सियासत का बहुत ही टर्निंग पॉइंट होगा। और तमाम समझदार लोगों को, तमाम जो भी इस मुल्क के अवाम के खैरख्वाह हैं, उनको बहुत गहराई के साथ, बहुत संजीदगी के साथ इस सिचुएशन को देखना और इसके ऊपर डिसीजन लेना है। आखिरी बात मैं एक और ये कहूँगा कि देखिए इस वक्त इमरान खान के हवाले से कराची के साथ उन्होंने जितने वादे किए थे वो सब भूल गए। यहाँ पे उन्होंने मर्दमशुमारी के हवाले से कराची पे जितना बड़ा जुल्म किया है, इतना बड़ा जुल्म कोई और नहीं कर सका। उन्होंने एक निहायत मुतनाज़िम जो उनका गवर्नर, लेकिन साथ में जो एमकेएम पाकिस्तान जो एलाय फॉर्म करके बैठी है, जब वो काबीना में अप्रूवल की बात आती है तो उस वक्त वो हाँ कर देते, उसके बाद वो मुकर जाते। तो क्या इसमें सारे क्वेश्चनेबल नहीं है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तमाम इस्लामी का भी कंट्रीब्यूशन है। अगर जमात इस्लामी ने तो नहीं कहा ना, स्टार्टिंग में तो आपने एक्सेप्ट किया और उसके बाद जब 2 साल गुजर गए उसके बाद आप लोगों को सेंसेस ज्यादा है। इंकिशाफ कर रहे हैं इस वक्त, यानी हम तो रोजे अव्वल से बिल्कुल नहीं उसामा भाई, स्टार्टिंग में आपने नहीं कहा, लेकिन अब आपको याद आ गया। देखिए उसके बाद सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीपल्स पार्टी ने अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको तो रोल प्ले करना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था। ये तो अभी जो है ना सोच हुए नहीं, यहाँ पे हथियार देने वाले भी आप ही लोग थे। यहाँ लोग बच्चों के जमात इस्लामी नहीं, यहाँ पे जो है ना जमात इस्लामी, मर्दमशुमारी की बात नहीं, आप कह रहे हैं ना सोच चूहे खा के, तो मैं भी आपको बता रही हूँ तालिब इल्मों के हाथों में हथियार देने वाली भी जमात इस्लामी थी। अपना भी माजी ना भूलें आप। ये कैसे कह सकती हैं आप? बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ, जिस तरह से वो कह रहे हैं ना सोच चूहे खा, मैं कह रही हूँ बिल्कुल यहाँ एमक्यू से पहले हथियार देने वाली जमात इस्लामी थी। चले आप मुझे ये बताइए, जो बिल्कुल इसमें मजाक अंदाज से हंसने वाली बात नहीं है। चले मुझे ये बता दीजिए, आप हम बातों का हल ठीक तरीके से भी कर लेते हैं। यही तरीका हमारे ऐवान में भी होता है। मर्दमशुमारी का जो हेड ऑफिस बना था वो सीएम हाउस था। मैं ये बात कहने जा रहा था जी कि जो मैं भी यही सवाल कर रही थी ना, आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने क्या किया? नहीं देखे उसके बावजूद भी उन्होंने कहा था अगर सीएम हाउस था तो सीएम, आपको भी पता है कि सीएम हाउस जरूर था, लेकिन करवाई किसने? मर्दमशुमारी। और सारी साजिशों का गढ़ है। सब देखिए देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ आप साजिश करोगे, कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश। देखिए जो इस तरह के लोग कहेंगे पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही सबसे पहले कहा था कि मर्दमशुमारी ठीक नहीं, इसको दोबारा होना चाहिए। उस वक्त तो ये सो रहे थे, आपके हाथ में ट्रॉफी है, लेकिन आप अपना किरदार अदा करें ना। जी मैं आऊंगी इनकी जानिब, 1 लाइनर दे दीजिए और 1 लाइनर आपसे भी लूंगी, क्विकली 1 लाइनर इस पर। कराची के हवाले से अगर जी आप कह रहे हैं ना कि सीएम हाउस जो है हर कॉन्स्पिरेसी का गढ़ है, हाउस और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस
جی یہ عوام کے لیے دونوں ہی کسی طریقے سے فائدہ مند ٹھیک ہے. مسیر آخری سوال کے جواب دے دیجیے. آپ لوگ کو بار بار ملٹیپل ٹائم میں صوبہ آپ کو ملا حکومت کے لیے, آپ لوگوں نے کیا ڈیلیور کیا؟ آپ مجھے کہتی ہیں کہ میں چشمہ لگا لوں, جب میں نے آپ سے کراچی کی سڑکوں کی بات کی, مجھے ضرورت نہیں چشمہ لگانے کی, اور نہ ہی مجھے گند کچرا دکھتا ہے. پتا نہیں آپ کو کیوں نہیں دکھتا. اعتماد کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آ رہے ہیں. اب آئے کس وقت آئے, جتنا ڈیلیور پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے, تیسری دفعہ ہم لوگوں کو اقتدار مل رہا ہے, عوام ہی دے رہی ہے. اسی وجہ سے بار حکومت کرنے کے بعد اب پرائیویٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا خیال آئے سب سے زیادہ آپ کو پاکستان میں بھی سب سے زیادہ جو ہے نا پبلک پرائیویٹ یہ بھی مل رہا ہے, اور سب سے زیادہ کام مل رہا ہے سب سے زیادہ. اور آپ کو امن کس نے دیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا. کراچی کو نظر انداز کرتی ہے. پیپلز پارٹی کراچی دشمن پارٹی ہے, اور پورا سندھ کے عوام اس وقت وڈیروں اور جاگیرداروں کے غلام بنے ہوئے ہیں, اور جمہوریت کے نام پر شاہی وڈیرا شاہی صوبے کے اوپر مسلط ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. مسرت نیازی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے بہت بہت شکریہ. راؤ سلیمان صاحب جرنلسٹ ہیں, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا, بہت بہت شکریہ. اسامہ رضی صاحب جماعت اسلامی سے شرکت کرنے کے لیے. پروگرام کو اینڈ کریں گے اسی نوٹ کے اوپر, ہر پولیٹیکل پارٹی کلیم کرتی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو بہت ڈیلیور کیا ہے, لیکن میری سمجھ سے باہر ہے جو پولیٹیشنز لائیو ٹاک شوز پہ یہ بول دیتے ہیں اینکر کو کہ آپ چشمہ لگا لیجئے, تو پھر شاید اینکرز اندھے ہیں یا وہ سیاستدان اندھے ہیں جن کو کراچی اور پورا سندھ ترقی یافتہ دکھتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.